Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back with the first lecture in the one-shot series for JEE Mains 2025. तो आज हम लोग करने वाले हैं Kinematics-1. Kinematics-1 में we're going to do uniform motion, uniform acceleration motion and projectile motion. तो इसको पूरे डिटेल में कवर करेंगे along with previous year's questions. बहुत सारे PYQs करेंगे and पूरा डिटेल theory भी करेंगे. In the most time efficient manner, I'll keep this down to under 1 hour, this entire lecture, and you will see how I'm able to cover all of this theory in detail with PYQs under 1 hour. Alright, so यहाँ पर इस साल there's been a change to the format by NTA, as you probably already know कि वो जो optional questions थे वो concept हटा दिया गया है. So there are people who are saying that this year's physics paper might be tougher than the last few years. It could be on the level of the way JEE 2020 था, 2019, 2020 वगैरह था, which was on the tougher side comparatively compared to the last few years, जहाँ पे काफी straightforward questions आ रहे थे physics में. The point is I will cover PYQs from the last few years as well as from 2020, 2019 वगैरह. तो थोड़े से last few years के थोड़े से easy type के सवाल भी cover करेंगे as well as some tougher side questions from 2020, 2019 so that you are prepared for every possible scenario. See, we cannot predict. Nobody can predict what the level of the paper is going to be. But what I'm going to do, I'm going to prepare you for every single scenario. Easy, difficult, doesn't matter. You will be prepared. पूरे physics के लिए just leave it up to me. Maths और chemistry देख लेना खुद से. I hope you are as excited to start this first lecture as I am. Let's go! So let's start with the definition of basic quantities that come in kinematics, जो कि है distance. So कोई particle है, वो कोई path के along travel कर रहा है. What is distance? Distance is the length of this path. As simple as that. ठीक है? So suppose this particle travels from point A to point B along this path. So this curve length is the distance. ठीक है? Next quantity, displacement. Now displacement is a vector. उसको generally S से represent करते हैं. It's a vector. So vector यहाँ पर कौन सा vector है? It's a vector that points from the initial position to the final position. So ये जो straight line vector है, that is my displacement vector. All right. So distance is a scalar. Displacement is a vector. Average speed. What is average speed? It is defined as distance divided by the time taken. So पूरा distance cover किया A to B divided by the time taken. And average velocity is the displacement divided by the time taken. So you can see average velocity is a vector. Vector divided by scalar is vector. So average velocity vector है. Average speed एक scalar है because this is scalar divided by scalar. Time is a scalar. Alright. So यहाँ पर questions किस तरीके से आते हैं इस एकदम basic concept पे भी JEE Mains पूछता है कभी कभार previous year question. Let's take a look. Let's take a look at a question that came in JEE 2023. एक particle circular motion कर रहा है with a constant speed of pi meter per second. ठीक है, so point A से point B तक जाता है. ये angle 120 degree है. Find the magnitude of average velocity. Alright, so average velocity के लिए कौन सा अपने पास formula है? Average velocity is displacement divided by time. Correct? Magnitude चाहिए मुझे, तो I need magnitude of displacement. And I need time. दो चीजें चाहिए. I want displacement का magnitude and time. Now displacement का magnitude will be the straight line from A to B. ठीक है? तो अब इस triangle, if I just draw, let's say this is O, center of the circle. So इस triangle में ये 120 डिग्री है, तो ये मुझे AB का लेंथ निकालना है. You should see that this is an isosceles triangle. OA and OB are equal, correct? Because radius के बराबर है. So isosceles triangle में what you can do is you can drop a perpendicular. And perpendicular drop करोगे तो ये OA का जो लेंथ है उसको मैं radius R कुछ बोलता हूँ, ठीक है? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट? 120 मतलब ये 60. तो ये कितना हो जाएगा? R sin 60, R root 3 by 2. Similarly ये भी R root 3 by 2. And therefore displacement कितना हो गया? AB R root 3. All right. Now displacement का magnitude आ गया. What about time?
सो टाइम के लिए मेरे पास दूसरा फॉर्मूला है, डिस्टेंस एंड स्पीड। स्पीड दिया ना क्वेश्चन में कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ, सो आई कैन से टाइम टेकन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 डिग्री इज 1/3 ऑफ अ सर्कल, सो 2 pi r divided by 3 divided by the speed which is pi, करेक्ट। सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, टाइम आ गया, हो गया r√3 डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2r/3, ठीक है। सो 3√3/2 मीटर पर सेकेंड, this will be your average velocity का magnitude. So basically you just need to use the formula that we know. दो ही फॉर्मूला है एवरेज क्वांटिटीज में, दो फॉर्मूला कौन सा है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ऑलराइट, देख लो। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2023। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है जो A से B से C से D जा रहा है। AB एंड BC एंड CD आर ऑल इक्वल, बट इस रीजन में उसका वेलोसिटी v1 है, स्पीड v1 है, B to C में स्पीड v2 है, C to D में स्पीड v3 है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ओवर द एंटायर जर्नी, ठीक है। सो क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का जस्ट डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं ये लेंथ L बोलूँ, सारे लेंथ L बोल दूँ, तो एवरेज स्पीड वुड बी डिस्टेंस बाय टाइम, सो 3L डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, करेक्ट। अब L मैंने अज्यूम कर लिया, होपफुली वो कट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में अपने को जो v1 v2 v3 ऑप्शंस में v1 v2 v3 के टर्म्स में दिए गए थे। अब मुझे टाइम निकालना है। सो टाइम इज आल्सो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज ईच इंडिविजुअल जर्नी में, ईच इंडिविजुअल पार्ट में आई कैन राइट टाइम एज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है L, स्पीड कितना है v1, प्लस B to C डिस्टेंस L, स्पीड v2, प्लस C to D डिस्टेंस L, स्पीड v3, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 डिवाइडेड बाय राइट टाइम्स L, ठीक है। सो एवरेज स्पीड वुड बिकम 3L डिवाइडेड बाय दिस, सो ये बन जाएगा 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ऑलराइट, तो नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल, बेसिकली जस्ट फॉर्मूला बेस्ड एज ऑलवेज। देख लो। Now let's look at the concept of uniform acceleration. अब acceleration को basically मैं average acceleration की अगर मैं बात करूँ, that is change in velocity by time. So change in velocity divided by time. So v is my final velocity, u is my initial velocity, vectors है, divided by time. This is what is the change in velocity. Change is physics में change is always final minus initial. उल्टा मत करना, ठीक है। So my average acceleration is v minus u by time. Okay. Now if we have uniform acceleration motion, then uniform acceleration मतलब हमेशा acceleration वही है, एक constant value है, ठीक है। uniform मतलब constant. So हमेशा constant acceleration motion है. So इसका मतलब जो average acceleration है वही हमेशा acceleration बन गया, ठीक है। So I'll write constant uniform acceleration के केस में average acceleration and instantaneous acceleration same ही चीज है। So acceleration becomes v minus u by t. I'm talking about uniform acceleration now. So I'll get v is equal to u plus at, ठीक है। ये जो velocity v and u है, these are instantaneous. उस instant पे क्या velocity है, okay? वो चीज, alright? So velocity is u plus at. ये vector form में है, मतलब all these v vector, u vector, a vector और vectors. अगर one dimensional motion है, so you can just write v equal to u plus at, where v, u, a are all along that. Suppose x-axis के along है, then v, u, a are all the x components. Okay. Then displacement का जो formula आता है, that is ut plus half at square. इस चीज को integrate करके आता है, but ये अपने को याद रखना है. All right. I'm talking about the general 3D case. And एक और formula है which is useful, which is more useful in one dimension. तो one dimension में अगर मैं देखूँ तो v square minus u square is 2as, where s is the displacement. यहाँ पर भी s जो है वो displacement है, u is initial velocity, a is acceleration. यहाँ पर भी s displacement, ठीक है। So one dimension में v square minus u square equal to 2as, and 3 dimension में you have to write the individual component. So v का x component minus u का x component का square should be 2ax into
displacement का x component, similarly for y, similarly for z. For now let's just focus on the one dimensional equations. तो one dimension में क्या है equation, यहाँ पे एक साथ पूरा लिख लेता हूँ, v equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square minus u square is 2as. Alright, and एक और useful equation is कि the average velocity, जो जिसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट है दैट रिप्रेजेंट्स एवरेज ऑफ एनी क्वांटिटी. सो एवरेज वेलोसिटी इज u plus v by 2, final plus initial या initial plus final divided by 2. This equation is only valid for uniform acceleration. Don't apply it somewhere where acceleration is variable. Okay. So average velocity, which I know is displacement by time, but I can also write it as u plus v by 2. तो ये चीज again one dimension में average velocity would be u plus v by 2. Alright, so ये जो equations है, they are going to be very useful in solving questions related to uniform acceleration. Let's just apply them to some questions from previous years questions and see how to actually apply these equations. Okay, let's look at a question that came in JEE 2024. Question क्या है? Train accelerates uniformly from rest up to 80 kilometers per hour in time t. उसके बाद then it moves with a constant speed for time 3t. ठीक है, for another 3t time constant speed से move करता है. तो average speed कितना हो गया पूरे जर्नी में? पूरे जर्नी का टोटल टाइम कितना हो गया? 4t. ठीक है, सो एवरेज स्पीड के लिए मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस एंड टाइम. टाइम तो मिल गया मुझे 40, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो मुझे निकालना. ठीक है, सो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? आई नो इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट है, फाइनल वेलोसिटी 80 kph है एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. क्विकेस्ट वे टू कैलकुलेट द डिस्टेंस वुड बी द एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला. नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज स्ट्रेट लाइन मोशन. कुछ बोला नहीं गया था, स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में आई कैन जस्ट अप्लाई 1D में कि एवरेज वेलोसिटी वुड बी v प्लस u बाई 2 इनटू टाइम. एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस ट्रैवल या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल, वो दोनों सेम चीज हो गया वन डायमेंशन में. सो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया? 80 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 विच इज 40 इनटू t. So this becomes 40t. So in time t, this train travels how much distance? 40t. So total distance कितना हो गया? 40t plus 3t में कितना स्पीड से ट्रैवल किया? 80 तक पहुंच के उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी. सो 80 से ट्रैवल किया 3t टाइम, मतलब कितना? 240t डिस्टेंस ट्रैवल किया. 80 into 3t, तो ये बन गया 280t. टोटल कितना टाइम ट्रैवल किया? 40. सो एवरेज स्पीड कितना हो गया? 280t divided by 40, which is 70 kph, and that's your answer. All right, तो काफी straightforward है, as long as you know which formula to apply. देख लो. Let's look at a very easy question from JEE 2023. Particle starts with velocity 10 meter per second, accelerates uniformly to 60 meter per second at a rate of 2 meter per second squared. Time taken is how much? तो बहुत ही straightforward, one dimensional motion है, बहुत ही straightforward. Just apply. इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है. एक ही इक्वेशन है जो जिसमें टाइम आता है एंड ये सारे क्वांटिटीज आते हैं, व्हिच इज v इक्वल टू u प्लस 80. तो 60 शुड बी इक्वल टू 10 प्लस 2t. सो टाइम टेकन वुड बी 25 seconds. ऑलराइट, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्री मार्क्स. ओनली मिस्टेक दैट कैन बी डन इज अ सिली मिस्टेक. ओके, ऑलराइट, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2024, which was actually very straightforward question. बहुत ही मतलब 30 seconds का question था, but many students complicated it by trying to use calculus. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि particle travels along the x-axis. लिखा गया था question में कि उसका velocity is given as 4 root x, where x is the x coordinate, meter per second. So what is this acceleration? ये पूछा गया था. So many people just try to use calculus in order to calculate the acceleration. But whenever you encounter such a type of question, जहाँ पे the velocities of this form, root of a plus bx, where a is a constant, b is a constant, then you have to compare it. You have to realize कि ये बस यही है. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, तो बस इसी से कंपेयर करना है अपने को. देखो यहाँ पर a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 1 है. b का वैल्यू 1 नहीं, सॉरी, मैं 4 अंदर लेता हूँ. आई कैन जस्ट कंपेयर, आई कैन जस्ट राइट b इक्वल टू 16x, राइट. इस चीज को रूट ऑफ 16x लिख सकता हूँ. तो जस्ट कंपेयर, u का वैल्यू 0 है एंड 2a का वैल्यू इज 16. So a का value is 8 meter per second. You have to realize that this form is uniform acceleration motion. So you don't have to use calculus. Okay, so very straightforward question as long as you know how to do it in the fastest way possible. देखो,
लेट्स डू अ नाइस टू डायमेंशनल क्वेश्चन जो JEE 2024 में आया था. लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन. पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t equal to 0. इनिशियल वेलोसिटी दिया गया था 5 i cap मीटर पर सेकंड. कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया 3 i cap plus 2 j cap मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड. फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स x कोऑर्डिनेट बिकम्स 84 मीटर्स. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था. ऑलराइट, तो ऐसे टू डायमेंशनल क्वेश्चंस में यू हैव टू लुक एट व्हिच इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो v इक्वल टू u प्लस 80 है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, वो सब x कोऑर्डिनेट में भी लिख सकता हूँ, y कोऑर्डिनेट y कंपोनेंट भी लिख सकता हूँ. ठीक है, सो x कंपोनेंट दिया हुआ है 84 मीटर्स और उस इंस्टेंट में मुझे स्पीड निकालना है. तो स्पीड मतलब the speed would be the magnitude of velocity. magnitude of a vector क्या होता है? उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर्ड का एडिशन, राइट? सो vx प्लस vy स्क्वायर. अब vx स्क्वायर के लिए कौन सा फॉर्मूला है मेरे पास? ये है, राइट? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो ux का वैल्यू कितना? 5. सो 25 प्लस एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट 3 एंड डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट द x कोऑर्डिनेट 84. ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस दिस विल बी 6 into 84. So 6 for 24, 2 48 plus 2, राइट? चेक कर लो मैंने सही किया है. 6 into 4 24 2. ठीक है, तो 25 plus 504 will become 529. ऑलराइट, यहाँ से अपने को डायरेक्ट पता चल गया vx का वैल्यू कितना? 23 मीटर पर सेकंड. ठीक है, अब vx से मैं क्या करूँ? vy कैसे निकालूं? vy के लिए मेरे पास डिस्प्लेसमेंट और y कोऑर्डिनेट नहीं है, बट vx से मैं टाइम निकाल सकता हूँ, बिकॉज आई कैन राइट 23 शुड बी इक्वल टू u प्लस 80. x कंपोनेंट भी, तो x कंपोनेंट ऑफ u इज 5 प्लस एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट इज 3, राइट? तो टाइम आ जाएगा 18/3 6 सेकंड्स. 6 सेकंड्स में वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ जाएगा क्या? आ जाएगा, v इक्वल टू u प्लस 80. सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज समवॉट इन्वॉल्व्ड, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है तुमको एग्जाम में सॉल्व करते वक्त, बट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट, बिकॉज दो डायमेंशन है तो दो सेट्स ऑफ इक्वेशंस यूज करना पड़ेगा, x कंपोनेंट y कंपोनेंट. ओके, नाउ u का y कंपोनेंट कितना है? 0 एंड एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट 2, तो ये बन जाएगा 12. ठीक है, सो आई हैव vx इज 23 एंड vy इज 12. सो बस अपने को ये करना है. सो 529 vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इज 144. ठीक है, तो ये बन जाएगा ऑलराइट. तो ऑप्शंस में न्यूमेरिकल टाइप था, ये इंटीजर टाइप था कि स्पीड पूछा गया था रूट अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो अल्फा का वैल्यू 673. ऑलराइट, सो दिस वाज अ वेरी गुड लेवल क्वेश्चन दैट विल टेक सम टाइम टू सॉल्व. तो अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना. आगे बढ़ते हैं. लेट्स डू अ क्वेश्चन टू डायमेंशनल मोशन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में. JEE 2020 में आया था. इट्स अ नाइस क्वेश्चन. पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी 3 i cap and a constant acceleration of 6 i cap plus 4 j cap. ये दिया गया. Find the x coordinate of the particle when the y coordinate becomes 32 meters. ठीक है, तो यहाँ पर जब x and y, मतलब y दिया हुआ है, x पूछा गया, the only one common variable between them is time. y के इक्वेशंस और x के इक्वेशन में कौन सा एक कॉमन वेरिएबल है? टाइम. तो अपन पहले y इक्वल टू 32 मीटर्स का इन्फॉर्मेशन से पहले टाइम निकालेंगे. सो आई कैन राइट y इज इक्वल टू u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर. अब uy कितना है? 0, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी का कोई j कैप कंपोनेंट तो है नहीं. सो हाफ ay मतलब कितना? 4 इंटू टी स्क्वायर एंड y मतलब 32. सो t का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा? 4 सेकंड, करेक्ट? सो उस 4 सेकंड में अब x कोऑर्डिनेट कितना है? फिर से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर. बस अभी सब्स्टिट्यूट करना है, तो easy है. But the only thing that you need to realize is time is the common factor between x and y. So ux मतलब कितना? 3. टाइम मतलब 4 प्लस हाफ इंटू ax का वैल्यू कितना दिया? 6. टाइम मतलब t स्क्वायर मतलब 16. ठीक है, अभी हो गया. ये बन जाएगा 12 एंड ये बन जाएगा 48. तो ये बन जाएगा 60 मीटर. ऑलराइट, देखिए. Let's do a two-dimensional question, this time from JEE 2019. A particle starts at t equal to 0 from this. तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर दिया गया है 2 i cap plus 4 j cap meters. मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 4 है. With velocity 5 i cap plus 4 j cap meter per second. So ये इनिशियल वेलोसिटी है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 4 i cap plus 4 j cap दिया हुआ है. Find the distance from the origin at t equal to 2 seconds. तो मुझे पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा.
सो सी आई कैन राइट कोई पार्टिकल सपोज यहाँ पर है, जस्ट जनरल बता रहा हूँ मैं, लेट्स से दिस इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर मतलब द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पार्टिकल. उसका x कोऑर्डिनेट इज x कंपोनेंट, y कोऑर्डिनेट इज द y कंपोनेंट. एंड सपोज द पार्टिकल ट्रेवल्स हियर, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, ये मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा. करेक्ट. सो यू कैन सी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वुड बी फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. ओके. So this is just triangle law, right? R1 plus S is equal to R2. So displacement vector is final position minus initial position vector. तो मुझे क्या चाहिए? I want the final position vector. तो ही मुझे distance from the origin निकलेगा. So final position vector is initial position vector plus displacement. अब initial position vector दिया गया है, displacement मुझे निकालना है. Alright. So displacement का x component और time का कोई equation है क्या? Second equation of motion. That will be uxt plus half axt squared. तो ux का वैल्यू मतलब कितना 5, टाइम कितना 2, ax का वैल्यू 4, टाइम इज 2 स्क्वायर्ड इज 4. ठीक है. तो ये बन जाएगा 10 प्लस 8, तो ये 18 मीटर हो जाएगा. एंड डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा uyt, uy इज 4 इंटू t इज 2 सेकेंड्स प्लस हाफ ay इज 4 इंटू टी स्क्वायर. ठीक है. तो ये बन जाएगा 16 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा 18 आई कैप प्लस 16 जे कैप मीटर्स. एंड देयरफॉर पोजीशन वेक्टर इनिशियली कितना है 2 आई कैप प्लस 18 20 आई कैप प्लस 4 प्लस 16 20 जे कैप. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आई वांट इसका मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस विच इज इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का स्क्वायर रूट. सो दैट विल बी 20√2 मीटर. ठीक है. देखिए, let's talk about another formula that is useful in uniform acceleration, which is displacement in the nth second. तो displacement in the nth second मतलब क्या कि मेरे पास सपोज ये टाइम है, टाइमलाइन है 1 सेकेंड 2 सेकेंड, ये सब इनिशियल पोजीशन से इनिशियल इंस्टेंट से मेजर किया गया है. ठीक है. सो दिस इज माय फर्स्ट सेकेंड, दिस इज माय सेकेंड सेकेंड, 2 से 3 इज माय थर्ड सेकेंड. So you can imagine nth second मतलब t equal to n minus 1 से t equal to n. This will be my nth second. ठीक है. तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उसको मैं s nth ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. इट्स वेरी सिंपल. डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n minus 1 सेकेंड्स. n सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस n minus 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा u n minus 1 प्लस हाफ a इंटू n minus 1 का स्क्वायर. ठीक है. तो यू कैन डू दिस कैलकुलेशन ऑन योर ओन एंड ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा जो अपन याद रखेंगे. ठीक है. सो nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इज u प्लस a इंटू n माइनस हाफ. देखिए, लेट्स टेक अ लुक एट अ क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2024. A body travels 102.5 meters in the nth second and 115 meters in the n plus 2th second. कितना एक्सेलरेशन होगा बॉडी का? तो सिंपल है, अपना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है. सो डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड वाला क्या फॉर्मूला था? u प्लस a टाइम्स n माइनस हाफ. राइट. अब n प्लस 2th सेकंड में ऑल वी हैव टू डू इज सब्सटीट्यूट n के जगह n प्लस 2, तो ये n प्लस 2 माइनस हाफ हो जाएगा, तो n प्लस 3/2 हो जाएगा. करेक्ट. मुझे क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए. u एलिमिनेट करना है, तो क्या करूँ? सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ. सो आई हैव सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 7.5, सॉरी माय मिस्टेक, 12.5. 115 माइनस 102.5 इज 12.5. ठीक है. शुड बी इक्वल टू a इंटू n कट गया, 3/2 माइनस हाफ इज 1. ठीक है. सो एक्सेलरेशन का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 12 सॉरी एक मिस्टेक कर दिया मैंने यहाँ पर, 2a होगा. राइट. 3/2 माइनस ऑफ माइनस हाफ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. 3/2 माइनस ऑफ माइनस हाफ विल बी 2. सो एक्सेलरेशन वुड बी 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. सो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना. दैट्स इट. द मोस्ट कॉमन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, तो ग्रेविटी का फोर्स कितना लगता है? mg वेक्टर. तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फोर्स बाय मास. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g वेक्टर, बट g का वैल्यू इज मैग्नीट्यूड इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड एंड ऑफन वी टेक इट एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड. जनरली क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है.
and direction is vertically down. ठीक है, so it's a constant value. So any object that is traveling only under the influence of gravity, उसको अपन free fall बोलते हैं, free fall motion, that is uniform acceleration. तो जो भी हमने इक्वेशंस पढ़ा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वो सारे वैलिड है फॉर फ्री फॉल मोशन. फ्री फॉल मतलब नॉट जस्ट फॉलिंग, फ्री फॉल मतलब द मोशन इज ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ओके, तो यहां पर इफ आई हैव एक ऑब्जेक्ट जिसको वेलोसिटी u से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कितना मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा, कितने टाइम बाद वो वापस आ जाएगा. सो लेट अस टेक अपवर्ड एज पॉजिटिव y एक्सिस. कोई भी डायरेक्शन लिख सकता हूं, डाउनवर्ड भी ले सकता हूं, बट लेट मी टेक अपवर्ड एज पॉजिटिव y एक्सिस. ठीक है, सो इफ इट कम्स बैक तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. व्हेन इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट इज 0. सो आई कैन यूज माय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन द y डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो गया, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज 0. अब u का वैल्यू u है, बट a का वैल्यू, ये सब साइन के साथ ये कंपोनेंट्स हैं, सर u y a y ऐसा है, राइट. तो अगर मैं अपवर्ड पॉजिटिव लूं तो मेरा u वेक्टर को तो मैं u j कैप लिख सकता हूं, बट a वेक्टर को मैं माइनस g j कैप लिखूंगा. हियर g इज द मैग्नीट्यूड, यू हैव टू अंडरस्टैंड g इज व्हाट. हियर g is simply the magnitude, it's a positive quantity, but the acceleration is in the negative y axis, so therefore I'll have a minus g j cap. Okay, so यहाँ पर x, so y component of velocity u है and y component of acceleration minus g है. So I'll write ut minus half gt square 0. तो यहाँ से टाइम तुम्हारा आ जाएगा, एक t कैंसिल कर दो, 2u by g. So time of flight is 2u by g, something that we will remember. ठीक है, तो वी विल रिमेंबर कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया वेलोसिटी u से, कितने टाइम बाद वापस आएगा, 2u by g. लेट्स आल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचेगा. मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 है, राइट, vy इज 0, पूरा ही वेलोसिटी 0 है तो y कंपोनेंट भी 0 है. सो कौन सा इक्वेशन यूज करो, थर्ड इक्वेशन विल बी यूजफुल, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, बिकॉज़ s मतलब डिस्प्लेसमेंट, व्हिच इज व्हाट आई वांट. सो आई विल हैव vy स्क्वायर इज uy स्क्वायर प्लस 2ay sy. So vy is 0, uy is u, ay is minus g and sy is h. So h का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, u square by 2g. So u स्पीड से वर्टिकली प्रोजेक्ट कर दिया गया, तो कितना मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा, u square by 2g. ये भी हम याद रखेंगे. ओके, देख लो. Let's look at a situation where an object is dropped. तो ड्रॉप मतलब वेलोसिटी 0 है इनिशियली और ये हाइट h है. तो कोई कॉमन क्वेश्चन है कितने टाइम में वो पहुंचेगा ग्राउंड पे. ठीक है, तो अगर मैं अभी डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लूं, आई कैन टेक अपवर्ड आल्सो पॉजिटिव, बट डाउनवर्ड इज यूजफुल बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड ही है, तो पॉजिटिव हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सो मेरा डिस्प्लेसमेंट इज h j कैप, बिकॉज j कैप नाउ इज डाउनवर्ड पॉजिटिव. एक्सेलरेशन इज g j कैप. g रिमेंबर इज मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन नाउ डाउनवर्ड व्हिच इज पॉजिटिव y एक्सिस. तो अभी एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट इज पॉजिटिव. इनिशियल वेलोसिटी 0. ठीक है, तो कितने टाइम में पहुंचेगा, आई कैन यूज माय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर सब y कंपोनेंट. uy तो 0 है, sy इज h, तो हाफ इंटू gt स्क्वायर, तो t का वैल्यू आ जाएगा √2h by g. याद रखेंगे हम, यूजफुल होगा. ठीक है, और कितने स्पीड से स्ट्राइक करेगा, आई कैन यूज माय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as सब y कंपोनेंट. vy वही मेरा v हो गया एंड uy is 0 and ay is g and sy is h. So v का वैल्यू √2gh, ये भी हम याद रखेंगे. ठीक है, so when an object is dropped, it hits the ground with speed √2gh and it hits it in a time of √2h by g. ठीक है, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2023 on free fall. एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया है वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड एंड g का वैल्यू दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, सो फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल at t equal to 3 and t equal to 5 सेकंड्स. सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है, तो वी कैन यूज ऑल आवर इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो 3 सेकंड्स पे कितना वेलोसिटी होगा वो निकालना है, 5 सेकंड्स पे कितना होगा, सिंपल है. सो v equal to u plus at सब y कंपोनेंट, मोशन इज अलोंग द y एक्सिस. तो vy कितना हो जाएगा, वही चाहिए मुझे, uy का वैल्यू 150
ना अपवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, इसलिए यू वाई इज पॉजिटिव अपवर्ड्स एंड ए वाई विल बी माइनस जी, राइट. सो 3 सेकेंड्स पे, एट 3 सेकेंड्स वी वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड, एंड एट 5 सेकेंड्स कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड. तो रेशियो आ गया 120/100 विच इज 6/5. दैट्स योर आंसर. ठीक है, देख लो. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2022. एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, मतलब रेस्ट से ड्रॉप किया है, and it travels a distance h. The first half of the journey, half distance, is covered in time t1 and the second half distance is covered in time t2. तो इनका रेशियो निकालना है t2/t1. ठीक है. ऑलराइट, सो कैसे करेंगे अपन? यहाँ पर मुझे, अगर मैं if I use the formula that we already found out for velocity, or rather I can use my formula for time because I need time, so I can just write time is √2h/g. h वाला h/2 हो गया, correct. √2h/g was the time taken to go from rest to a distance h. यहाँ पर h/2 and पूरा टाइम कितना हो जाएगा? that will be t1 plus t2. remember this formula of √2h/g only when स्टार्टिंग में वो रेस्ट से रिलीज किया गया. तो मैं ये डायरेक्टली t2 के लिए फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकता, बट पूरे जर्नी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ बिकॉज इनिशियली वो रेस्ट पर था. सो मैंने t1 प्लस t2 टोटल टाइम इज √2, पूरा डिस्टेंस इज h. तो t2 मुझे चाहिए ना, t2/t1 चाहिए ना, तो मैं t2 कितना हो जाएगा? कैन यू सी दिस इज √2t1, सो t2 वुड बी √2 माइनस t1. बस यही अपने को चाहिए. ऑलराइट, तो थोड़ा अपने को फॉर्मूला याद रखना है, बाकी फॉर्मूला एप्लीकेशन ही है. देखो, Let's do a question that came in JEE 2024. It's a nice question. एक टावर के टॉप से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया था with a certain speed. It takes time t1 to reach the ground. क्वेश्चन पूरा लैंग्वेज में लिखा गया था, मैंने डायग्राम बनाया. सेकेंड केस में the particle is projected downwards with the same speed. दोनों केस में सेम स्पीड है and it reaches the ground in time t2. In the third case, the particle is dropped from the top of the tower. कितना टाइम लगेगा to reach the ground in terms of t1 and t2? This was the question. Options दिए गए थे. Okay, so let's take a look at what we can do to solve this. तो अगर इसका हाइट मैं कुछ h मानूं तो टाइम कितना हो जाएगा √2h/g. ये तो अपने को पता है, राइट. तो मुझे h का वैल्यू चाहिए, तो मेरा काम हो जाएगा. ओके, यहाँ पर स्पीड कुछ u मान लेते हैं, दोनों केस में स्पीड u है. ठीक है. लेट मी टेक डाउनवर्ड एज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट इज h डाउनवर्ड्स. मेरा चॉइस है, अपवर्ड भी पॉजिटिव ले सकते हो. लेट मी टेक डाउनवर्ड एज पॉजिटिव बिकॉज डिस्प्लेसमेंट फिर पॉजिटिव हो जाएगा. तो इफ आई राइट माई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, h इज इक्वल टू, अब इस केस में वेलोसिटी इज माइनस u बिकॉज स्पीड इज u विच इज अपवर्ड्स एंड आई हैव टेकन डाउनवर्ड इज पॉजिटिव. सो माइनस u t1 प्लस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव g डाउनवर्ड्स. करेक्ट. सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड सिचुएशन की क्या लिखूं? अगेन डिस्प्लेसमेंट तो h है. रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. तो ये पाथ डज नॉट मैटर. द स्ट्रेट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज h डाउनवर्ड्स. ऊपर का कुछ भी हो जाए वो पाथ डज नॉट मैटर फॉर डिस्प्लेसमेंट. तो सेकंड सिचुएशन के लिए ut2 प्लस हाफ gt2 स्क्वायर. तो अब मुझे h को एलिमिनेट, सॉरी u को एलिमिनेट करके h निकालना है. सो व्हाट आई विल डू इज आई कैन जस्ट डिवाइड बाय t1. तो h/t1 आ जाएगा, ये t1 का स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे h/t2. t2 से डिवाइड कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन एंड ऐड कर देता हूँ. u को एलिमिनेट करना है ना, सो आई विल हैव h into 1/t1 plus 1/t2 शुड बी इक्वल टू g into t1 plus t2 by 2. तो 2h/g देखो आ गया मेरे पास. 2h/g will become t1 t2. t1 plus t2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो कट गया. ठीक है. सो 2h/g is t1 t2. तो दिस becomes root of t1 t2. Alright, so it's a nice question, but you should be able to know how to actually solve the equations mathematically. अपने को u एलिमिनेट करना था, तो मैंने t1 and t2 से डिवाइड करके ऐड कर दिया. देखिए, let's do a very nice question from JEE 2020. A ball dropped from 100-meter high tower on another planet covers 19 meters in the last half second before hitting the ground. तो ये मेरा ग्राउंड है और एक बॉल को ड्रॉप किया कितने हाइट से? 100 मीटर्स से. तो लास्ट हाफ सेकेंड में वो कितना कवर करता है? 19 मीटर्स. ठीक है. तो क्या पूछा गया? फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लैनेट. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और है इस प्लैनेट पे, वो अपने को निकालना. Alright, so last half second में it covers 19 meters, right? So सबसे पहले तो if you drop it, कितने स्पीड से वो हिट करेगा
वी स्क्वायर, ये जो फाइनल वेलोसिटी है, वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू रूट टू जी इंटू रूट टू जी एच, सॉरी वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, करेक्ट। यू इनिशियली वेलोसिटी 0 है, ड्रॉप किया गया है। थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी, आई एम टेकिंग डाउनवर्ड एज पॉजिटिव, तो जी मेरा पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव 100, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज टू जी एच, ये मेरा बन गया इस पॉइंट पे। लेट्स से 19 मीटर ऊपर उसका वेलोसिटी कुछ v डैश है, राइट। तो 19 मीटर जस्ट ऊपर वेलोसिटी v डैश है, वो कितना होगा? हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? 81 मीटर, ये 19 है तो ये 81 है, सो v डैश स्क्वायर वुड बी 2g इंटू 81, करेक्ट। सो v इज इक्वल टू 10 इंटू रूट टू जी, v डैश इज इक्वल टू 9 इंटू रूट टू जी। अब मैं ये क्यों v और v डैश निकाल रहा हूँ? बिकॉज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, लेट्स कॉल दिस a and b, this distance is 19 meters. It takes how much time? Half second. So can I get the average velocity? कितना हो जाएगा? 19 meter divided by half second, मतलब 38 meter per second is the average velocity, but that should be the average of this v plus v dash by 2. बस यहाँ से तुमको g का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा 76 should be equal to v plus v dash, तो 19 into root 2g, so 2g would be equal to 16, g का वैल्यू मतलब 76 by 19 is 4, 4 का स्क्वायर, so g is equal to 8 meter per second square. Alright, so that is the way you will solve this kind of question. So very nice question. Most people were not able to do this JEE 2020 में जब आया था, but I hope इस तरीके से question अगर तुम्हारे JEE में आए, you should be able to follow this process and get the answer. देख लो. Let's come to projectile motion now. तो projectile motion में क्या होता है कि एक particle है, उसको project कर दिया गया कुछ velocity से at an angle. This motion is also free fall because free fall का definition क्या है? Motion under the influence of only gravity. तो यहाँ पे सिर्फ gravity का force लग रहा है, but the velocity is at some angle. It's not vertical. Vertical motion अपन ने पूरा analyze कर दिया, but this velocity is at some angle. So it will perform some what we call motion as projectile motion, and it will land on the ground. ठीक है, ground हो सकता है या फिर ऐसा कुछ टावर से भी फेंका जा सकता है, तो और नीचे जा सकता है. Alright, we'll analyze everything. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब एक ही लेवल पे, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो मुझे क्या क्या निकालना है इसमें? आई वांट टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, आई वांट टू फाइंड द रेंज, आई वांट टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड. ओके, तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आई कैन राइट माय वेलोसिटी वेक्टर एज u cos theta I cap plus u sin theta j cap. आई एम टेकिंग x axis दिस वे एंड y axis अपवर्ड्स. ठीक है, तो u cos theta I cap plus u sin theta j cap. ऑलराइट, मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अब when the particle is projected at some angle, the acceleration only depends on the force, and the force is only gravity. Gravity is acting downward, so acceleration downward ही है. तुम कोई भी angle पे project करो velocity, acceleration throughout the motion is only downwards. So acceleration would be minus g j cap, downward है ना? ठीक है, g is the magnitude. Okay, तो ये मेरा वेक्टर फॉर्म में इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हो गया. सो लेट्स फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम में पहुंचेगा. तो आई कैन राइट डिस्प्लेसमेंट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर इन द y डायरेक्शन, बिकॉज y डायरेक्शन में द डिस्प्लेसमेंट इज 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये पूरा स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्प्लेसमेंट है, करेक्ट. द स्ट्रेट वेक्टर इट्स अलोंग द x एक्सिस, तो y कंपोनेंट कितना है? 0. सो आई विल से 0 शुड बी इक्वल टू uy मतलब y कंपोनेंट u sin थीटा t प्लस ए वाई मतलब माइनस जी, माइनस जी टी स्क्वायर. टी टी कट के मेरे पास आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, जो हम याद रखेंगे. ठीक है, फिर मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम हाइट है, इफ आई लुक एट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हियर टू हियर, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा फ्रॉम इनिशियल टू हाईएस्ट पोजीशन. उसका y कंपोनेंट इज द मैक्सिमम हाइट. सो आई कैन से इस पॉइंट पे पूरा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो vy 0 है. सो आई कैन से vy स्क्वायर इज uy स्क्वायर प्लस 2ay sy. फ्रॉम हियर टू हियर sy इज h एंड vy इज 0. 0 देखो, uy इज u sin थीटा, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट माइनस g एंड डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट h. तो यहां से मेरे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया, जो हम याद रखेंगे. And range is very simple. Range is just the horizontal component of the displacement. The entire displacement. ये मेरा range है. तो range कितना हो जाएगा? That is nothing but horizontal displacement. So horizontal displacement के लिए क्या लिखूँ मैं? uxt plus displacement का x component is uxt plus half axt square. But
the beautiful part about this projectile motion is that there is no horizontal component of acceleration. तो ये पूरा चीज जीरो हो गया, सिर्फ y कंपोनेंट है ना, तो ux is u cos थीटा इंटू टाइम जो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, 2 sin थीटा cos थीटा है sin 2 थीटा, सो मेरा रेंज कितना हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, ये भी हम याद रखेंगे. सो दीज 3 थिंग्स आर थिंग्स दैट वी नीड टू remember. Alright, देख लो. Let's look at this question that came in JEE 2023. A particle is projected with some speed at an angle of 15 degrees और उसका रेंज दिया गया है 50 meters. अब उसी स्पीड के साथ a particle is projected at 45 degrees. तो what is the new range? ठीक है. So बस रेंज का फॉर्मूला अपने को यूज करना है, u स्क्वायर sin 2 थीटा by g. तो u स्क्वायर u मतलब कितना, कुछ सेम स्पीड है तो अपन कुछ u मान लेंगे और वो कट जाएगा, u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, तो साइन 30 डिग्री मतलब हाफ डिवाइड बाय g, और ये रेंज कितना है 50 मीटर्स. सो 50 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2g. ठीक है. अब सेकेंड सिचुएशन में जो रेंज चाहिए मुझे, दैट इज u स्क्वायर फॉर 45 डिग्री साइन ऑफ 2 थीटा, तो रेंज मुझे क्या चाहिए u स्क्वायर बाय g विच इज डबल ऑफ दिस, सो ये मेरा बन जाएगा 100 मीटर. Okay, very straightforward. One thing that you notice, जो मेरा फॉर्मूला रेंज इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ये रेंज मैक्सिमम कब होगा? When थीटा इज 45 डिग्रीज, बिकॉज तब भी साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 बन जाएगा, राइट? एंड यू शुड ऑल्सो बी एबल टू सी कि रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 30 60 37 53, basically addition 90 degree, because sin 2 theta will be same for complementary angles, right? Okay, so ये दो चीज अपन याद रखेंगे. Alright, देख लो. Let's do a nice question from JEE 2019. तो क्वेश्चन में बोला गया था, मैंने पूरा वर्डिंग नहीं लिखा पर मैं बोल देता हूँ ओरली. क्वेश्चन में बोला गया था कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with speed u and it covers a range r. T1, T2 are the two possible time values to cover the same range with the same initial speed. इसका मतलब क्या कि the angles must be complementary. ठीक है, तो दो possible angles हैं, right? मतलब अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा, but they will both cover the same range. We saw that because range is u square sin 2 थीटा by g. तुम थीटा को 90 माइनस थीटा से भी रिप्लेस करोगे तो sin 2 थीटा का वैल्यू चेंज नहीं होगा, राइट? सो क्या पूछा गया? Then the product T1 T2 is what? Alright, तो सबसे पहले तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T1 कितना हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी. T2 कितना हो जाएगा 2u sin ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब वो क्या बन जाएगा cos थीटा बाई जी. एंड देयरफॉर T1 T2 दोनों का प्रोडक्ट बन जाएगा 4u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी. बट रेंज का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, तो यहाँ पर है वो 2 sin theta cos theta becomes sin 2 theta, and this is nothing but my range, right? So this will become यहाँ पे सॉरी g squared होना चाहिए, ठीक है? तो एक g ये पूरा रेंज बन गया मेरा. So 2r by g. So my answer would be this. Alright, देख लो. Let's look at another question. A projectile is fired at 30 degrees to the horizontal. It is at the same height at 3 seconds and 5 seconds. Initial speed कितना है? So एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है 30 डिग्रीज पे, एंड इट इज एट द सेम हाइट एट 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड. सो 3 सेकेंड पे कहीं यहाँ पर होगा ऊपर जाते वक्त, एंड नीचे आते वक्त फिर से 5 सेकेंड पर होगा. ठीक है, तो क्या पूछा गया? व्हाट इज द इनिशियल स्पीड. तो अगर ये हाइट h बोलूँ मैं, तो कैन आई राइट h इज इक्वल टू u बाई t प्लस हाफ a बाई t स्क्वायर, बिकॉज h इज द डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट, राइट? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका y कंपोनेंट इज h. सो अगर मैं अपवर्ड पॉजिटिव y एक्सेस लूँ एज यूजुअल, तो u y कितना हो जाएगा u sin 30, तो u बाई 2 इनिशियल स्पीड u है, एंड a y कितना हो जाएगा माइनस g विच इज माइनस 10. ठीक है, सो आई विल हैव h इज इक्वल टू माइनस 5 t स्क्वायर. ओके, नाउ यू कैन सी दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन टाइम, एंड देयरफॉर उसके दोनों रूट्स होंगे 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड्स. लेट मी राइट इट दिस वे, t स्क्वायर माइनस ut by 10 प्लस
h by 5 is 0, just to express it in a convenient manner in a quadratic form. तो t में quadratic है और इसके quadratic क्यों है? Because it makes sense. There are two time instants and at which the height is the same. So this equation is satisfied for two time instants, which is given to us as 3 seconds and 5 seconds. तो इसमें ये जो चीज है, what is that? We know sum of roots, so I can write 3 second plus 5 second is equal to u by 10, right? So मेरे पास u का वैल्यू आ जाएगा, because इसके दोनों रूट 3 and 5 है, तो उनका sum of roots is going to be u by 10. ठीक है, all right, देखो let's do a question. JEE 2023 में आया था, particles projected at a velocity of 40 meter per second at an angle 30 degrees to the horizontal, find the speed at t equal to 2 seconds. तो जब speed पूछते हैं तो मतलब magnitude पूछा है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उसके कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके ऐड करना होगा, तो दो चीजें अपने को निकालना है. नाउ vx इज ऑलवेज इक्वल टू ux बिकॉज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज 0, जो भी एक्सेलरेशन है वर्टिकल में है, सो वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू, हमेशा थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट व्हिच इज 40 cos 30. सो 40 cos 30 मतलब 40 root 3 by 2 which is 20 root 3 meter per second. What about vy? I'll use uy plus ayt. ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव y एक्सिस ले रहा हूं तो uy कितना हो जाएगा 40 sin 30 which is 20, ay का वैल्यू -10 -g एंड टाइम कितना दिया 2. ठीक है, सो इसका मतलब vy 0 है, तो बचेगा सिर्फ vx एंड देयरफॉर योर आंसर वुड बी 20 root 3 मीटर पर सेकंड. तो इस तरीके से यू कैन फाइंड द स्पीड एट एनी टाइम दैट इज आस्क्ड. देख लो. नाउ लेट्स कंसीडर द टॉपिक ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मतलब कि कोई हाइट से थ्रो कर दिया, कोई टावर से थ्रो किया है तो इधर कहीं तो लैंड करेगा ग्राउंड पे, लेट्स से हाइट h से. ठीक है, सो आई वांट टू कैलकुलेट द रेंज, आई वांट टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, सो लेट मी टेक दिस एज माय x एक्सिस, लेट मी टेक अपवर्ड एज पॉजिटिव y एक्सिस. So this vector, straight vector from the initial position to the final position is going to be my displacement vector. उसका horizontal component will be the range and उसका vertical component will be the height. ठीक है, so sy would be equal to minus h because s का y component is pointing down whereas we have taken our y axis to be positive upwards. ठीक है, u का y component would be u sin theta and a का y component would be minus g because upward positive y axis लिया हुआ है. तो टाइम कैसे निकालूं? डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कौन से इक्वेशन में आता है? विच विल गिव अस टाइम. सो ये मेरे पास हो जाएगा h इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर. यहाँ पे दो रूट्स आएंगे, एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा. नेगेटिव रिजेक्ट करेंगे, जो टाइम का जो पॉजिटिव वैल्यू है दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, तो वो तो वैल्यूज अच्छा दे देंगे तो सॉल्व हो जाएगा. And what about range? Range is nothing but the displacement का x component which is ux into t because ax is 0. यहाँ पे displacement का x component को ux t plus half ax t square लिखूंगा, but ax का वैल्यू कितना है प्रोजेक्टाइल में 0. So मेरे पास बस बचेगा ux into t which is u cos theta into t. ठीक है, तो ये जो t का वैल्यू है वो ये इक्वेशन से निकलेगा. तो पहले t का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके I will get my range. Now इसका जो स्पेशल केस है दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है. तो इस केस में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0. थीटा का वैल्यू 0 हो गया ना यहाँ पर. सो इस केस में हाइट को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ हाफ gt स्क्वायर. तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास आ जाएगा √2h by g. ठीक है, एंड देयरफॉर रेंज बन जाएगा थीटा का वैल्यू 0 मतलब u cos थीटा इज 1 u into t, तो u into √2h by g. ये मेरा रेंज हो जाएगा, ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा. याद रखना है तो रख सकते हो, बट यू शुड बी एबल टू डिराइव इट आल्सो वेरी क्विकली लाइक आई हैव डन इट हियर. ओके, देखो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024. वो क्वेश्चन वर्ड्स में लिखा था, मैंने डायग्राम बनाया. सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज दैट अ पार्टिकल ऑफ मास m is thrown horizontally with velocity v from a tower of height h and it lands at a distance 100 meters from the tower, मतलब range 100 meters. In the second situation, I have a particle of mass 2m which is thrown from a tower of height 4h horizontally with a velocity v by 2. What is its range? ये पूछा गया था. ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो कि ये जो मास दिया हुआ है that is only given to confuse you because range के फॉर्मूला में there is no mass, right? रेंज के फॉर्मूला क्या था मेरा?
पार्टिकल को कोई वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया हाइट h से, तो वी गॉट द रेंज एज u रूट 2h/g। तो यहाँ पे मास का कोई टर्म है ही नहीं, इट वाज सोलली गिवन टू कंफ्यूज यू एंड मेनी स्टूडेंट्स वर इंडीड कंफ्यूज्ड। सो यहाँ पर ऑल वी हैव टू डू इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर। तो फर्स्ट सिचुएशन के लिए रेंज 100 है, u का वैल्यू v है रूट 2h/g, ठीक है। सेकेंड केस में अननोन रेंज है, वेलोसिटी का वैल्यू v/2 है एंड हाइट 4h है, सो 2 इंटू 4h/g। अभी अगर मैं 4 को बाहर ले लूँ स्क्वायर रूट से तो वो 2 बन जाएगा, 2 2 कट के आई विल गेट द एग्जैक्ट सेम रेंज एज द फर्स्ट सिचुएशन। सो सेकेंड सिचुएशन में भी रेंज इज गोइंग टू बी 100 मीटर्स, ठीक है। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024। तो यहाँ पर है कि पार्टिकल, और वर्ड्स में लिखा था, क्वेश्चन में था कि अ बॉल इज रोल्ड ऑफ अ स्टेयरकेस विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u and then of course it will perform projectile motion. Find the minimum speed such that it hits the fifth step. तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप और ये फिफ्थ स्टेप है। सो इफ इट हैज टू हिट द फिफ्थ स्टेप, इट हैज टू क्रॉस द कॉर्नर ऑफ द फोर्थ स्टेप, राइट। तो जस्ट उसको हम लोग मिनिमम स्पीड के लिए जस्ट उधर ग्रेज करके जाएगा, ग्रेज मतलब जस्ट टच करके जाएगा, ठीक है। सो आई वांट टू फाइंड द मिनिमम स्पीड। सो क्वेश्चन में लिखा था मिनिमम स्पीड इज रूट x मीटर पर सेकंड, फाइंड x। Alright, so basically this is a horizontal projectile and each step has a height of 0.1 meters and a width of 0.1 meters. ये बोला गया था क्वेश्चन में। Alright, तो if I look at the trajectory from this point to this point, it's like a horizontal projectile जिसका height कितना हो जाएगा 1, 2, 3 and 4. So 0.4 meter is the total height and similarly 1, 2, 3 and 4, 0.4 meters is the range. तो फॉर्मूला में डाल देते, मेरा रेंज का फॉर्मूला था ये था। So range is 0.4 should be u, which is what we want, into, correct? So यहाँ पर 0.4 रूट 0.4 कट के यहाँ पे रूट 0.4 आ जाएगा, 2/10 is 5, तो 5 राइट साइड में चला जाएगा, तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 5 into 0.4 रूट 2, तो मेरे x का वैल्यू आ जाएगा 2, alright? So it's ये जो क्वेश्चन था वो डायग्राम नहीं दिया था क्वेश्चन में, so the difficulty in this question was only drawing the diagram and then using the formula. बट एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लिया देन इट्स क्वाइट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। देख लो, लेट्स लुक एट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सपोज पार्टिकल को इस तरीके से लॉन्च कर दिया है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। नाउ इट कुड बी अ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल और इट कुड बी एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल गोइंग डाउन, डजंट मैटर। I want to find the equation of trajectory. So what does equation of trajectory in physics mean? It means a relation between the coordinates. मतलब x and y coordinate के बीच में एक relation चाहिए विदाउट एनी मेंशन ऑफ टाइम। तो मुझे टाइम एलिमिनेट करना है, तो टाइम t में अगर ये u है, इनिशियल स्पीड u है, एंगल थीटा है, कैन आई राइट x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट विल बी द y कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट व्हिच विल बी u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज किया, y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज माइनस g एंड वेलोसिटी इज u sin थीटा, एंड बस टाइम एलिमिनेट करना है। तो यहां से तुम टाइम को x by u cos थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो ये दोनों चीज़ों में, तो व्हाट यू विल गेट इज व्हाट वी कॉल एज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट इट ऑन योर ओन एंड यू विल गेट दिस। ये चीज़ हम याद रखेंगे, ऑलराइट। सो दिस रिप्रेजेंट्स y as a quadratic in x, so this represents a parabola. So the conclusion is that ये जो motion है that is a parabolic, the shape of the trajectory, the shape of the path is a parabola, ठीक है, projectile motion में। Alright, so this is my y coordinate in terms of x. देख लो, let's look at a question that came in JEE 2024. The trajectory of a particle is given by y equal to x minus x square by 20 projectile motion का what is the maximum height attained? So पहले तो maximum height attained के लिए इसको एक्चुअली दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो हमने पढ़ा उसको यूज कर सकते हैं, या फिर कैलकुलस भी यूज कर सकते हैं। लेट मी जस्ट शो यू बोथ मेथड्स एंड यू कैन यूज व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद। तो मेथड 1, सबसे पहले मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो मुझे ये क्वांटिटी चाहिए, राइट। नाउ आई नो द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज दिस, करेक्ट। तो कंपेयर करो, सबसे पहले x का कोएफिशिएंट कितना 1, सो मतलब tan थीटा 1, मतलब थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, मतलब y का वैल्यू कितना हो गया x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1/2, तो ये 2 हट जाएगा, ठीक है, ओके।
So now compare again. So I have g by u squared is equal to 1 by 20. मुझे क्या चाहिए, मतलब यहाँ से बेसिकली मेरे पास u square by g आ गया 20. तो हो गया मेरा मैक्सिमम हाइट बिकम्स u square by g is 20 divided by 2 and sin square theta is half, sin square 45 is half. तो ये मेरा बन जाएगा 5 meters. Okay, so this is the way you can do it using the equation of trajectory. Second method is you can use calculus. पूछा क्या गया, मैक्सिमम हाइट, तो y कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम पूछा गया, बेसिक कैलकुलस dy by dx करो, कितना आ जाएगा 1 minus 2x by 20 मतलब x by 10 should be 0 मतलब x is equal to 10. यहाँ पे मैक्सिमम आया, substituted back, तो 10 minus 100 by 20 again 5 meters. So this does look a little quicker. Use whatever you're comfortable with. ठीक है, देख लो. And that's it for today. I hope you enjoyed the lecture. I hope you found the lecture very useful. Make sure you comment under the video. Let me know your feedback and show some appreciation for all the hard work that I'm putting in for you guys. Next time, Kinematics-2 करेंगे, relative motion, calculus based problems, graphs. So I'll see you next time and I will see you at the top.